Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next poem from the book First Flight. It is poem number 4 and the name of the poem is How to Tell Wild Animals. Okay, and this poem is written by Caroline Wells. So she is the poetess of this poem. Okay, so students, the name is How to Tell Wild Animals. It means in the poem we will read about some of the wild animals and their specific characteristics, or we can say their specific qualities. With the help of those qualities we can identify about those wild animals, right? So this is a very interesting poem, very easy to understand, very easy to read, and it is written in a very funny way. Okay, it is written in a very comical way, right? So it is a very easy poem. So let's start reading with our poem How to Tell Wild Animals, right? So this is the first stanza of the poem. So now I am sure आप सबको पता है what is a stanza. So this is our first stanza. Let's start. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So this is the first stanza of this poem, and in this stanza the poet is introducing Asian lion. Okay, so the poet is giving the introduction of Asian lion. Okay, so Asian lion के बारे में इस stanza में क्या कहा गया है? So the poet is saying that if ever you should go by chance to jungles in the east, so if by chance you are getting the chance, you are getting the opportunity to go to the jungle, and in which direction? In the east direction, right? So if ever, however, if you get the chance, you get the opportunity to go in the jungle, to visit the jungle in the east direction, and there if a large and tawny beast is there. Okay, so what is tawny? Tawny means of an orange or brown color. Okay, it is a color that is orangish, or we can say brown color. And beast, what is beast? Beast means a large and dangerous animal. Okay, so the poet is saying that अगर हम जंगल में जा रहे हैं, if we are moving ahead, okay, अगर हम advance means to move forward. Okay, so अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जंगल में, इस डायरेक्शन में हम चलते जा रहे हैं और सडनली हमारे सामने there is a beast, and that beast is of orangish brown color, and if he roars at you as you are dying. Okay, अचानक से हमारे सामने suddenly there is a beast, and that beast, that large animal, that dangerous animal is having the brownish color, orangish color, and suddenly he starts roaring. Okay, और वो इतनी जोर से roar कर रहा है, उसकी जो आवाज़ है, that sound is so loud, or we can say that sound is so horrible, कि उसकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लग रहा है कि as if we are dying. Okay, so उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक है, उसकी जो roaring sound है वो सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है कि डर की वजह से शायद हम मर ही ना जाएं, इतनी ज़्यादा horrible और we can say loud उसकी जो आवाज़ है. तो अगर ऐसा beast आपको मिल जाए, so you will know it is the Asian lion. तो आप समझ जाना कि वो जो beast है आपके सामने, that beast is Asian lion. Okay, so Asian lion here in the picture we can see, आप सबने भी देखा है, this is the Asian lion. Okay, so in this first stanza the poet is giving some of the characteristics of Asian lion, some of the specific qualities, or we can say some of the specific features that the Asian lions have. Okay, so वो features क्या है जिनके बेस पे we can identify that okay this beast is Asian lion. So वो features, वो quality जो हमें दी गई हैं इस स्टेंजा में वो क्या है? So one more time let's revise. Poet ने हमें इस स्टेंजा में कहा है कि if we are lucky enough to get a chance to visit the forest, to visit the jungle, and that too specifically in the east direction, right? So if we are moving forward, if we are moving ahead in the jungle, and suddenly there is a beast, there is a large animal, we can say there is a dangerous animal that is there in front of us, and that animal is of a tawny color, right? That animal, that beast is having some orangish color, some brown color, and he starts roaring. So as soon as he sees us in the jungle, he will start making his roaring sound. Okay, so जैसे ये हमें देखता है जंगल में कि हमारे सामने वो आ गया है, तो हमें देखते ही वो अपनी वो roaring sound क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो roaring sound होती है that is so horrible, or we can say that is so loud, और उसको देख के हम इतना डर जाते हैं that because of the fear it is possible
हॉरिबल दैट वी मे डाई. ओके, सो अगर इस तरह का बीस्ट आपके सामने आ जाएगा, सो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट बीस्ट, दैट बीस्ट इज द एशियन लायन. ओके, सो दीज ऑल क्वालिटीज जो है ये सभी एशियन लायन में होती हैं. एशियन लायन इज हैविंग ऑल दिस क्वालिटीज. ही इज हैविंग यू नो दिस कलर, दिस बॉडी कलर दैट इज ऑरेंजिश ब्राउन कलर, एंड ही इज हैविंग दैट रॉरिंग साउंड, दैट हॉरिबल रॉरिंग साउंड. ओके, सो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने इस तरह से हमें कुछ क्वालिटीज दी हैं, सम ऑफ द यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द फीचर्स एशियन लायन के, जिनके बेस पे नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द एशियन लायन, राइट. सो नाउ डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस दैट आर देयर इन दिस पोम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द राइम स्कीम. So what is the rhyme scheme of this poem? Let's mark the rhyme scheme. Our first word is chance, so we will mark the sound of chance as A. Okay, second is east, so chance and east, no, they are not having similar sound, so east will be B. Okay, next is advance, so chance and advance, yes they are similar, so advance will be A. Next is beast, east and beast, yes they are similar, so we will mark beast as B's, just as of sound of east. Okay, next is dine, so chance, east and dine, okay, they are not similar. Dine sound is not matching neither with chance nor with east, it is a new sound, so we will mark it as a C. Okay, next is lion, so dine and lion, yes they are similar, so again it will be C. Okay, so the rhyme scheme of first stanza is A B and C C. Okay, and throughout the poem, throughout the all stanzas, the same rhyme scheme is used. इसी rhyme scheme को use किया गया है सभी stanzas में. हम यही rhyme scheme देखेंगे, that is A B and C C. Okay, clear? Okay, one more literary device that we can see here is assonance. Now what is assonance? Assonance is the prominence of some vowel sound in one of the sentence. Okay, so we all are aware what are vowels, what are consonants. So जब भी किसी vowel sound को बहुत ही prominently use किया जाता है किसी sentence में, so this is called the example of assonance. So here in the first sentence we can see the vowel sound जो है O. Okay, so the O sound is very prominently used in this sentence. We can see you, should, go. Okay, so जो vowel sound है O की, that is very prominently used in this sentence, so this is the example of assonance. Okay, okay, one more literary device that we can see here, we can read this word, this is roars. Okay, so what is roar? Roar is a sound word, it is the sound created by lions. Okay, so this is a sound word. So जब भी poem में इस तरह के sound word को use किया जाता है, it is also a literary device known as onomatopoeia. Okay, so this is the use of onomatopoeia. So this is an example of onomatopoeia. Now one more time we will understand what is onomatopoeia. जब भी किसी sound word, okay, sound word को जब हम use करते हैं in the poem, then it is called the use of onomatopoeia. So roar is a sound word, it is a sound created by the lions. Okay, so this is the example of onomatopoeia. One more literary device is used here, that is inversion. Now what is inversion? So let's discuss. Okay, let's read this line. And if there should to you advance a large and tawny beast. So when we read this line, so it is very clear that the structure of the sentence is not correct, right? The structure of the sentence is incorrect as for the grammatical rules. The grammatical structure जो होता है sentence का, उस structure को यहाँ follow नहीं किया गया है. एक proper structure में अगर हम sentence को लिखें तो sentence क्या होगा? Sentence ऐसे बनेगा that and if there you should advance to a large and tawny beast, right? So this is the correct structure. लेकिन यहाँ पे poet ने जो एक proper grammatical structure होता है उसे follow नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? Just to create the rhyme scheme, because he wanted to put the word advance here at the last of the sentence just to rhyme it with chance. Okay, so इस तरह से rhyme scheme create करने के लिए उन्होंने जो एक grammatical structure का एक sentence होता है एक proper way में जो हम लिखते हैं उन्होंने उसको change कर दिया है. So this is also
also a poetic device that is known as inversion. Okay, so जो poets हैं they can get this liberty कि वो अपने according जो grammatically एक proper correct sentence होता है उसका जो structure होता है उस structure को they can change. Okay, just to create more rhyme or we can say just to create some more effect to their poem they can change the grammatical structure of any sentence, but this is a poetic device and it is known as inversion. So there here we can see the use of inversion. यहाँ ये जो sentences का structure थोड़ा सा change कर दिया गया है just to create the rhyme. Okay, so this is called the example of inversion. We can see the use of inversion here in this first stanza. Okay, clear? Now second stanza. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, so in this second stanza the poet is introducing the Bengal tiger. इस stanza में he is describing some of the qualities of the Bengal tiger, right? So poet क्या कह रहे हैं? He is saying that if sometime when roaming round, now we are in the jungle and we are just roaming round. What is roaming? Roaming means move about. Okay, so we are in the jungle and we are just roaming round, we are just walking, we are just wandering, we are just going forward in the jungle, and suddenly one more time there is a beast in front of us. और वो जो beast आया है वो कैसा है? He is very noble. Noble means royal, or we can say he is very gentle, but still he is a wild beast. Okay, and he is there to welcome us. Okay, so we are in the jungle, हम उसके जंगल में हैं, so he is there to welcome us with black stripes on a yellow ground. And उसकी जो appearance है वो कैसी है, वो कैसा दिख रहा है? He is having a yellow ground. Yellow ground means उसका जो skin color है, उसका जो body color है, उसका जो base है, that is yellow, and on that yellow base he is having some black stripes. Okay, so हम सबको पता है जो बंगाल टाइगर होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, उनका जो बेसिक स्किन कलर होता है, जो बेस होता है that is yellow, and on that base they are having these stripes of black colors. Okay, so ये उनका स्किन कलर होता है, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है. They are having the yellow ground and over that they are having the black stripes. Okay, just notice if he eats you. So अगर इस तरह का बीस्ट आपके सामने आ जाता है सडनली, जो कि इस तरह का अपीयरेंस उसकी है, वो येलो बॉडी है उसकी और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, और अगर वो आपके सामने आ जाएगा तो आप इस चीज़ को नोटिस करना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो आपके सामने आते ही, हमने वी हैव रेड अर्लियर जब हमने एशियन लायन के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एशियन लायन जब आएगा हमारे सामने सो ही विल स्टार्ट रॉरिंग, राइट? लेकिन जो बंगाल टाइगर है ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द एशियन लायन. और डिफरेंस क्या है कि बंगाल टाइगर किसी भी तरह की साउंड क्रिएट नहीं करेगा, बट हमें देखते ही विल अटैक ऑन अस एंड ही विल ईट अस. ओके, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न. तो अगर हमें रूल याद रहेगा कि जो रॉरिंग साउंड क्रिएट कर रहा है दैट बीस्ट इज द एशियन लायन, और जो बिना किसी साउंड क्रिएट किए ही इमीडिएटली अटैक कर देगा जस्ट टू किल अस, जस्ट टू ईट अस, देन द एनिमल इज ए बंगाल टाइगर. सो ये रूल हमें लर्न रखना है. इस रूल को लर्न कर अगर हमने कर लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा हमें पहचानना. डिजर्न मीन्स टू आइडेंटिफाई. ओके, सो अगर ये रूल हमने लर्न कर लिया सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर. ओके, सो बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का रूल क्या है कि जैसे ही हम उसके सामने आएंगे वो कोई आवाज़ क्रिएट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. ही विल डायरेक्ट अटैक ऑन अस एंड ही विल किल अस, ही विल ईट अस. ओके, सो इस तरीके से जो बंगाल टाइगर है ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द एशियन लायन. ओके, सो इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज़ गिवन some of the characteristics, some of the basic features, or we can say some of the basic qualities that the Bengal tigers have. Okay, so उनकी appearance कैसी होती है? येलो बैकग्राउंड पे दे आर हैविंग द ब्लैक स्ट्राइप्स, और वो किसी भी तरह की साउंड क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि हमें देखते ही वो हम पे अटैक कर लेंगे जस्ट टू किल अस. ओके, सो दिस इज अ सेकंड स्टैंजा. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल द rhyme scheme, as we have discussed earlier, all these stanzas in the poem have the same rhyme scheme, that is AB, AB and CC. So one more time we can see. So first word is round, we will mark round as A. Second is U, it is a different sound, so we will mark it as B. Next is ground, round and ground, yes they are similar, so ground will be A.
you, they are same word, same sound, so it will be B. Next, learn, so round, you and learn, so learn is an again new sound, so we will mark learn as C. Next is discern, so learn and discern, yes they are similar, so it will be C. Okay, so the rhyme scheme of this stanza will be same, A B and C C, and throughout all these stanzas there is the same rhyme scheme, right? Okay, so one more literary term that we can see here is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, so here we can see roaming round, जो दोनों ही words हैं उनकी जो starting sound है वो क्या है, same है, roaming round. Okay, so is the repetition of the same consonant sound. So this is an example of alliteration, right? Okay, one more literary device that we can see here is oxymoron. Now what is oxymoron? So here we can see these two words, noble, vile. So noble and vile, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें ध्यान से, अगर हम इनका मीनिंग्स जानने की कोशिश करें, so what is noble? Noble is a person who is very gentle, who is very kind, who is very decent, right? और जो wild है, so who is a wild? So wild एक तरह से just opposite होता है noble का, right? अगर if some person is a noble person, is some person is a very gentle person, that he cannot be wild, right? And if a person is very wild, that he cannot be called a gentle, or we can say he cannot be called a noble person. Okay, so they are just opposite qualities, बिल्कुल opposite words हैंगे जो कि same time एक ही साथ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे पोएट ने इस फॉर्म में इन दोनों opposite words को साथ साथ यूज़ किया है. So this is again a literary device that is known as oxymoron. So oxymoron क्या होता है? जब भी दो opposite qualities को, जब भी दो opposite words को together यूज़ किया जाता है, एक साथ यूज़ किया जाता है पोम में, तब वो literary device बनता है oxymoron. So this is an example of oxymoron. Noble, vile, they are having the opposite meaning, they are the opposite words, but in the poem the poet has used these two opposite words together. So this is the example of oxymoron. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं oxymoron का यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया गया है. Okay, next, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Okay, so in this stanza जो wild animal हमें introduce किया गया है, that is leopard. Okay, और जो poet है वो उसकी क्या qualities हमें बता रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, if strolling forth, strolling means again to walk or to wander or to roam. Okay, so now we are again in the jungle and we are roaming around, we are walking around, we are going forward in the jungle. A beast you view, suddenly one more beast is there, हमारे सामने एक और beast हमें दिख जाता है, whose hide with spots is peppered. अब ये जो beast है, now what about his appearance, वो दिखने में कैसा है? What is hide? Hide means animal skin. Okay, जो animal की skin होती है that is called hide. So उसकी जो hide है, उसकी जो skin है, okay, उसकी जो body की skin है, with spots is peppered. Peppered means covered with spots. Okay, so उसकी जो skin है that is covered with spots. Okay, so हम सब ने देखा है leopard को, leopard दिखने में कैसा होता है, उसकी जो skin है उस पे ये इस तरह के spots होते हैं पूरी skin पे, right? So उसका जो skin है that is covered with a lot of spots. As soon as he has leapt on you, और जैसे ही हमारे सामने वो आएगा, हमें देखते ही वो क्या करेगा, he has leapt on you. Leapt means to jump. Okay, so now यहाँ पे one thing जो हमें ध्यान में रखनी है, जो real spelling होती है, correct spelling leapt की, that is L-E-A-P-T, right? This is the second form of leap, L-E-A-P. So leap means to jump. Okay, so the real or we can say the correct spelling is L-E-A-P-T, but here in this spelling जो poet है उन्होंने A जो है उसको skip कर दिया है, A उन्होंने यहाँ
यहाँ पे नहीं लिखा है और उन्होंने इस तरह से इस स्पेलिंग को लिखा है। ओके, सो एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, सो जैसे ही वो हमें देखेगा, वो हम पे लैप यानी हम पे जंप करेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। और तब आप समझ जाना इन सभी क्वालिटीज़ के बेस पे कि अगर उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि उसकी स्किन जो है, उसकी जो बॉडी है, उसमें बहुत सारे स्पॉट्स हैं और आपको देखते ही वो 1 सेकंड में ही आपके ऊपर जंप कर लेगा, सो आप समझ जाना कि वो जो वाइल्ड एनिमल है, वो जो बीस्ट है, वो कौन है, दैट इज़ अ लेपर्ड, राइट। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। और जो लैपर है ये क्या करेगा, ये हम पे किसी भी तरह का हमें पेन नहीं देगा अपनी रॉरिंग साउंड से। ओके, सो ये भी किसी भी तरह की रॉरिंग साउंड नहीं क्रिएट करेगा, ऐसे साउंड जिसको सुन के हमें पेन हो, हमें फियर लगे, इस तरह का ये काम कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, he will lap and lap again, ये बार बार बस हमारे ऊपर जंप करेगा, राइट। सो ये भी एक क्वालिटी है लेपर्ड की, जिसकी वजह से ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द एशियन लायन और द बंगाल टाइगर, कि वो हमें देखते ही ही विल जंप, ओके, एट वंस ही विल जंप ऑन अस एंड ही विल मेक नो रोरिंग साउंड टू क्रिएट पेन और टू कॉज पेन, बट ही विल जस्ट जंप एंड जंप ऑन अस। ओके, और उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, ही इज़ हैविंग वेरी अ लॉट ऑफ स्पोर्स ऑन हिज बॉडी। ओके, सो इस तरह के अपीयरेंस के साथ ये वाइल्ड बीस्ट हमें वहाँ मिलेगा जंगल में। जब हम और आगे वॉन्डर करेंगे, हम वॉक करेंगे। ओके, सो इन दिस स्टेंजा हमने पढ़ा लेपर्ड के बारे में, राइट। सो हम सब ने देखा है लेपर्ड को, इस तरह की उसकी बॉडी होती है और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी क्या है, टू जंप, राइट। So in this stanza again we can discuss some of the literary devices. First of all, rhyme scheme, as we have discussed earlier also. सब stanzas में same rhyme scheme को follow किया गया है, that is A B and C C। आप सभी words को अपने आप बोल के पहचान कर सकते हैं। You can mark by yourself the rhyme scheme of this stanza, right? So next to discuss one more literary device that we can see here is poetic license. Now what is poetic license? So as I have told you कि जो लेफ्ट है, हमने यहाँ पे पढ़ा लेफ्ट, और ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी ए को स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे भी जो एक्चुअल और वी कैन से जो करेक्ट स्पेलिंग है लीप की, दैट इज़ LEAP, लेकिन यहाँ पे ए को स्किप कर दिया है। सो ये जो लिटरेरी डिवाइस है, दिस इज़ नॉन एज पोइटिक लाइसेंस। अब इसमें क्या होता है, अगेन जो पोइट्स होते हैं दे कैन गेट सम ऑफ द लिबर्टी कि वो जस्ट टू क्रिएट मोर इफेक्ट इन देयर पोएम, और अपनी पोएम को और ज़्यादा आर्टिस्टिक ब्यूटीफुल बनाने के लिए और टू इंक्रीज द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ देयर पोएम दे कैन यूज़ दिस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस। वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, वो लिबर्टी ले सकते हैं कि वो स्पेलिंग में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज द आर्टिस्टिक ब्यूटीज ऑफ देयर पोएम। सो इसी तरह से यहाँ भी पोइट ने किया है, जो स्पेलिंग है उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो दिस इज कॉल्ड द लिटरेरी टर्म नोन एज पोइटिक लाइसेंस। ओके, सो इस पोइटिक लाइसेंस को यूज़ किया है पोइट ने, और वो अपने अकॉर्डिंग लिबर्टी ले सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग को वो थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूज़ किया गया है पोइटिक लाइसेंस। वन मोर लिटरेरी डिवाइस दैट वी कैन से हियर इज रेपिटेशन। So in the last line we can see lap and lap again. So यहाँ पे same word जो है वो repeat किया गया है twice. So this is the example of repetition. Okay, next. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Okay, so in this stanza जिस wild animal के बारे में हम पढ़ेंगे that is a bear. Okay, and what qualities, what we can say special features जो है वो bear में होते हैं। So उसके बारे में poet हमें क्या बता रहे हैं। So the poet is saying that if when you are walking around your yard, okay, so now we are not in the jungle, अब हम जंगल में नहीं हैं, but we are in our yard, हम अपने घर के बाहर जो यार्ड बना हुआ होता है, जो गार्डन होता है, हम वहाँ पर हैं और हम वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, हम वहाँ पे रोमिंग राउंड कर रहे हैं, we are just moving there, okay, and suddenly there we meet a creature, okay, creature is a living being, okay, so अचानक हमारे सामने एक क्रिएचर आ जाता है, हमारे ही घर के बाहर जो यार्ड है वहाँ पे अचानक से एक क्रिएचर आ जाता है। Who hugs
यू वेरी वेरी हार्ड। और अब ये जो क्रिएचर आया है ये हमें देखते हैं क्या करेगा, ये कोई भी रॉरिंग साउंड नहीं करेगा, ये हम पे जंप नहीं करेगा, नथिंग लाइक दैट, बट ही विल हग अस। एंड कैसे, वेरी वेरी हार्ड। इसका जो हग होगा वो हग बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ अफेक्शन नहीं होगा, बट ही विल हग अस वेरी वेरी हार्ड। बी श्योर इट इज़ अ बेयर। और अगर ऐसा क्रिएचर आपको मिल जाए जो आपको देखते ही आपको हग कर ले, सो डेफिनेटली आप श्योर हो जाना दैट दैट क्रिएचर इज़ अ बेयर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स बट स्टिल इफ यू आर हैविंग सम ऑफ द डाउट्स दैट वेदर इट इज़ अ बेयर ओनली और सम एनी अदर क्रिएचर, तो पॉइंट कह रहे हैं कि आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। ओके, सो अगर अभी भी आप डाउटफुल हो, अगर अभी भी आपको डाउट हो तो थोड़ा सा और वेट करना, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि जो वो क्रिएचर है वो आपको एक और कैरेस देगा। कैरेस इज अ जेंटल टच और वी कैन से अ लविंग टच। ओके, तो वो आपको और टाइटली हग करेगा, आपको एक और अच्छा सा टाइट हग देगा। सो यहाँ पे भी ये जो बात है बहुत ही फनी वे में लिखी गई है, क्योंकि जो बेयर है उसका जो हग है दैट इज़ नॉट अ लविंग हग, उसका जो हग है, उसका जो टच है दैट इज़ नॉट ए जेंटल टच, बल्कि ये जो स्पेशलिटी है, ये जो क्वालिटी है बेयर्स में होती है कि वो हमें हग कर लेंगे, वो इतना टाइटली हग करेंगे, वो इतना टाइटली हमें होल्ड कर लेंगे दैट यू नो हम सफोकेशन फील करेंगे, हम सफोकेट हो जाएंगे एंड वी विल बी अनेबल टू ब्रीथ। ओके, हम सांस नहीं ले पाएंगे और इस तरह से वी विल डाई। सो ये भी उसी का एक फीचर है हमें मारने का, कि वो हम पे जंप नहीं करने वाला, वो किसी भी तरह की रॉरिंग साउंड नहीं क्रिएट करेगा, बट ही विल हग अस सो हार्ड, सो टाइटली दैट इट विल सफोकेट अस एंड वी विल डाई बिकॉज वी विल बी अनेबल टू ब्रीथ एयर, राइट। सो ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेयर की। सो हम सब ने देखा है बेयर, और जो बेयर की एक और क्वालिटी है वो क्या है, दैट इट कैन स्टैंड ऑन हिज 2 feet जस्ट लाइक ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो हमारी तरह ये भी अपने 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और फिर ये हमें अपने 2 हाथों से हग कर लेगा, इतना टाइटली होल्ड कर लेगा दैट बिकॉज ऑफ द सफोकेशन वी विल डाई। ओके, सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर की। सो ऐसा अगर क्रिएचर हमें दिख जाएगा, सो बी श्योर दैट दिस क्रिएचर इज अ बेयर। ओके, और बेयर से मिलने के लिए हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये काफ़ी कॉमनली हमारे घर के यार्ड में आ जाता है। ओके, सो इस तरह से हम इस क्रिएचर को मिल सकते हैं और मिलके हम पता लगा सकते हैं दैट दिस इज अ बेयर। ओके, so in this stanza again rhyme scheme is the same as we have discussed earlier. Rhyme scheme is AB, AB and CC. You can mark the rhyme scheme by yourself. Okay, so one more literary device that we can see here is alliteration. So what is alliteration? Alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, so here we can see when walking, yes, दोनों के स्टार्टिंग में इनिशियली जो साउंड है दैट इज सेम, दैट इज सिमिलर। सो दोनों में सिमिलर साउंड यहाँ पे रिपीट हुई है, when and walking. So this is the example of alliteration. Okay, so or one more time alliteration we can see here, hugs and hard. So again this is the example of alliteration, right? Next, though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile. You always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So in this stanza एक साथ 2 different animals के बारे में बताया गया है, 2 animals को introduce किया गया है। First is crocodile, second is hyena. Okay, so हम सब ने देखा है this is hyena and this is the crocodile, और इनके बारे में special qualities जो है वो हमें क्या बताई गई हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। ओके, सो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश? डिस्टिंग्विश मीन्स टू रिकॉग्नाइज, और वी कैन से इफ वी हैव टू मेक द डिफरेंस, अगर हमें डिफरेंस करना है, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है बिटवीन 2 बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब प्रे किसे हम कहते हैं, मतलब जो दोनों ही एनिमल है, हाइना एंड क्रोकोडाइल, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे, क्योंकि ये अदर एनिमल्स को हंट करके अदर क्रिएचर्स को ये लोग खाते हैं, राइट। सो दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे। तो अगर हमें इन दोनों बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इनको रिकॉग्नाइज करना है, सो उसके लिए हमें क्या बताया गया है, एंड नोविस माइट नन प्लस। सो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में अगर कोई नोविस होगा, नोविस इज समवन हु इज वेरी न्यू टू हिज जॉब, ओके, समवन हु इज हैविंग नो एक्सपीरियंस। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है वो तो थोड़ा सा नॉन प्लस हो सकता है,
वो थोड़ा सा पजल, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है दैट हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन अ हाइना और अ क्रोकोडाइल। ओके, सो इन दोनों को, एनिमल्स को, इन दोनों बीस्ट ऑफ प्रे को आइडेंटिफाई करने में एक ऐसा पर्सन हु इज़ हैविंग नो एक्सपीरियंस, उसको थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हमें एक बहुत ईजी वे बताया गया है जिससे हम पहचान सकते हैं दैट क्रोकोडाइल कौन सा है और हाइना कौन सा है। तो बहुत ही फ़नी वे में, बहुत ही कॉमिकल वे में हमें बताया गया है। एंड व्हाट इज़ द टेक्निक? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा बीस्ट क्रोकोडाइल है, कौन सा बीस्ट हाइना है, सो वो डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है? हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स। वो सिंपल रूल क्या है? वो रूल ये है कि जब भी हम हाइना को देखेंगे, हाइना जब भी हमारे पास आएगा, ऑलवेज देयर विल बी अ वेरी मैरी स्माइल ऑन हिज फेस। उसके फेस पे हमेशा बहुत ही हैप्पी स्माइल रहेगी। सो दिस इज़ वेरी फनी, क्योंकि उसकी जो स्माइल है हाइना की, ऑब्वियसली वो कोई हैप्पी स्माइल नहीं है। वो हमारे पास हैप्पीली स्माइल करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि हमें वो किल करने के लिए, हम पे अटैक करने के लिए आएगा, राइट? बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर वो बीस्ट ऑफ प्रे स्माइल नहीं कर रहा एंड इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग दैट बीस्ट ऑफ प्रे इज वीपिंग, तो आप समझ जाना कि दैट बीस्ट इज अ क्रोकोडाइल, राइट? सो एक बहुत ही कॉमन सेइंग है ना, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। सो उसको यहाँ पे रेफर करते हुए बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर वो बीस्ट ऑफ प्रे बहुत ही स्माइल करते हुए, हैप्पीली स्माइल करते हुए आपके पास आ रहा है, देन आप समझ जाना दैट इज अ हाइना। एंड इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग, अगर वो बीस्ट स्टार्टेड क्राइंग, तो आप समझ जाना दैट इज अ क्रोकोडाइल, राइट? सो इस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हु इज अ हाइना एंड हु इज अ क्रोकोडाइल। ओके, सो इस तरह से बहुत ही फनी वे में यहाँ पे इस बात को लिखा गया है, राइट? तो इस बात से हम पहचान सकते हैं हाइना और क्रोकोडाइल को के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्रोकोडाइल हमेशा एक तरह से रोएगा, अपने आंसू हमें दिखाएगा, लेकिन हाइना जो है वो हमेशा बहुत ही हैप्पीली स्माइल करते हुए हमारे पास आएगा, राइट? सो इन दिस स्टेंजा अगेन rhyme scheme is the same, that is AB, AB and CC. One more dictionary device that we can see here is irony. सो व्हाट इज़ आयरनी? आयरनी मीन्स हम जब भी कोई बात कहते हैं, ओके, सो उसका जो मीनिंग है दैट इज़ जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम द रियलिटी इज कॉल्ड आयरनी। ओके, सो हेयर यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, हाइनास कम्स विथ मैरी स्माइल्स। सो हमें पता है कि हाइना की जो स्माइल्स है दैट इज़ नॉट हैप्पी, दैट इज़ नॉट मैरी। ओके, वो हमें मैरीली स्माइल देने के लिए हमारे पास नहीं आ रहा, बल्कि ही इज़ कमिंग जस्ट टू अटैक अस, जस्ट टू किल अस। ओके, सो यहाँ पे राइटर ने जो ये बात लिखी है, जो पोइट ने इस लाइन को लिखा है, इसका जो मीनिंग है दैट इज जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम द रियलिटी, दैट इज द रीजन। यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। ओके, सो नाउ क्लियर आप सबको क्या आयरनी का मतलब होता है? आयरनी मीन्स जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं या जब भी हम कोई बात कह रहे हैं, सो उसका जो मीनिंग है दैट इज जस्ट ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट इज द रियलिटी, देन इट इज कॉल्ड द यूज ऑफ आयरनी। सो यहाँ पे आयरनी का यूज इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं। ओके, राइम स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी स्टेंजर्स में राइम स्कीम सेम है। आप सारे वर्ड्स को अपने आप बोल के यू कैन क्रिएट, यू कैन मार्क योर ऑन राइम स्कीम। ओके, नेक्स्ट, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. Okay, so in this stanza we will learn about the chameleon. So chameleon के बारे में हमें क्या बताया गया है? What the characteristic, what the special features are there? A true chameleon is small. So poet कह रहे हैं कि एक true chameleon जो होता है वो बहुत small होता है, वो कोई बहुत बड़ा क्रिएचर, बहुत ह्यूज, बहुत बिग नहीं होता, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्रिएचर, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह दिखने में होता है, एक लिजर्ड की तरह ये भी एक रेप्टाइल होता है। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, और दिखने में ये कैसा होता है? इसके बिल्कुल भी ईयर्स नहीं होते। सो दिस इज कैमेलियन, आप सबने भी देखा होगा, एक लिजर्ड की तरह दिखता है एंड ही इज़ हैविंग नो ईयर्स एंड नॉट अ सिंगल विंग। ओके, सो इसके ईयर्स भी नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम द ईयर्स ही इज नॉट हैविंग अ सिंगल विंग। ओके, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट्स द कैमेलियन यू सी। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैमेलियन की क्या है? सो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर आपने किसी ट्री को आप देख रहे हैं, ओके, और उस ट्री पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री,
तो आप समझ जाना कि आप एक्चुअल में कैमेलियन को देख रहे हैं। सो ये बात राइटर ने यहाँ क्यों लिखी है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, हम सबको पता है कि कैमेलियन का एक स्पेशल फीचर होता है दैट दे कैन चेंज देयर स्किन कलर। ओके, वो अपने स्किन कलर को चेंज कर लेते हैं। सो अगर अब वो किसी ट्री पे बैठे हुए हैं दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, सो वो उसी के अकॉर्डिंग उसी बैकग्राउंड के कलर के हो जाते हैं। सो उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो कभी लीफ पे बैठे हैं, ग्रीन लीफ पे बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्किन कलर ग्रीन कर लेते हैं। सो ये उनका एक स्पेशल फीचर होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना स्किन कलर चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम किसी पेड़ को देख रहे हैं और हमें दिख रहा है कि इस पेड़ पे तो कुछ भी नहीं है, सो डेफिनेटली उस पेड़ के ऊपर एक कैमेलियन बैठा है, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी दैट ही कैन चेंज द स्किन कलर, और इसकी वजह से वो उस बैकग्राउंड में ही मिक्स हो जाता है। इस वजह से वी विल बी अनेबल टू सी हिम, वी विल बी अनेबल टू रिकॉग्नाइज दैट ओके देयर इज अ कैमेलियन। हम उसको देख नहीं पाएंगे बट डेफिनेटली वो वहां पर बैठा हुआ होगा। ओके, सो ये एक स्पेशल फीचर होता है दैट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड कलर इट इज कैपेबल टू चेंज इट्स ऑन स्किन color, right? So again in this stanza we can see some of the literary devices. Rhyme scheme is the same as we have discussed earlier. It is AB, AB and CC. Okay, so students, here we have completed this poem, How to Tell Wild Animals. It is very simple, very easy poem, very easy to understand, and it is written in a very funny way, very comical way. Okay, so I hope all these stanzas, all the literary devices, everything is very much clear to you all. In the next video we will see the comprehension part, we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.